Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 21st of June. It will be quite an interesting and important session, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about OPS benefits to UPS subscribers that has been provided. UPS is your unified pension scheme. Then we will be talking about first of its kind national consultation of gender budgeting in New Delhi. Then India's first hydrogen bus, and we will be talking about Nakshatra. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 AM in the morning on regular basis. Do watch these videos early in the morning so that you don't have to worry about current affairs for the whole day, and you will be, when reading or you will be using social media, you will be able to connect that yes, early in the morning Vikas sir told me about this particular news and there it is on social media, right? So it will be very beneficial for you all. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Government has extended the OPS benefits to UPS subscribers. OPS is your old pension scheme. Old pension scheme. Right? And UPS is your unified pension scheme. Correct? Take a note of this. The central government employees who opted for UPS will get the benefits under the OPS if the employees died while in the government service or if discharged due to invalidation or disablement. Apart from this, this is the first thing. Second, additionally, employees with a minimum of 10 years of service are entitled to a minimum pension of 10,000 rupees per month upon supination. And second, this order gives option to OPS in case of a death in service that UPS pensioners will be eligible for a 25 lakh gratuity. Right, so these are the three additions, right? These revised instructions that has been provided to all the central government employees who will be opting for this UPS that was recently launched, Unified Pension Scheme. OPS is the old pension scheme that used to be for the government employees, and now it is your Unified Pension Scheme. Correct? Take a note of this. So remember these three things. One more thing, remember, this new unified pension scheme, this has been made effective from 1st of April 2025. Next, moving on students, MOWCD, that is Ministry of Women, Child and Development, has organized the first of its kind national consultation of gender budgeting in New Delhi. This national consultation on gender budgeting was held at Vigyan Bhavan in New Delhi. This event aims to review and refine the gender responsive budgeting practices in India. The key objective here is basically to discuss various ways that will enhance the gender equality across sector, sharing of successful initiatives, and also practices that will be implemented by various ministries and states under the respective scheme, where equal amount of money or a large portion of money will be provided for both the genders. Correct? Take a note of this. Also, this initially introduced as a mechanism where you will be seeing that gender equality will be promoted with this. Correct? Also, 4.49 lakh crore rupees has been allocated for the gender budget for FY26. This is an increase of 37% amount as compared to last year. Take a note of this. One more thing, a gender budgeting knowledge hub has also been launched. It was developed by Ministry of Women, Child and Development. Next,
Next is here you can see during this event, Union Minister Annapurna Devi of Union Minister of Women Child Development launched a web portal, that is a website, that is Gender Budgeting Knowledge Hub, that has been developed by Ministry of Women Child and Development, and it is a centralized digital repository for all the information related to gender budgeting processes, including policy briefs, best practices, gender disaggregated data, which support the integration of gender lenses into all stages of planning. Moving on, next we are talking about hydrogen buses, right? India's first hydrogen flagged off in Leh Ladakh. If you are following me for a very long time, students, we discussed this few months back that in Leh Ladakh specifically, a pilot program is being run, that is to test the hydrogen buses, right? And after the completion of this test, now we will be seeing India's first hydrogen bus that will be officially flagged off for commercial operation. It will be in Leh, Union Territory of Ladakh. Correct, and it is India's first ever commercial deployment of hydrogen buses, right? Why hydrogen? Hydrogen is generally considered a clean fuel. On its burning, water is released in the form of vapors. This is the residue. No carbon content is released. These green hydrogen buses were handed over by NTPC, National Thermal Power Corporation. Correct, very important, students, take a note of these. These are eco-friendly and they will be having a range of almost 300 kilometers with 25 kilograms of hydrogen. If we talk about NTPC, who is the chairman and managing director here? Gurdeep Singh, headquartered in New Delhi, established in 1975. Next is ICMR, that is Indian Council of Medical Research, right? Inaugurated India's first high performance computing facility named Nakshatra. This was at the ICMR National Institute of Virology in Pune, Maharashtra. This facility has been developed under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, that is PM-ABHIM. This will strengthen the India's capacity for genomic surveillance, pandemic preparedness, and AI-enabled research will be carried out with this particular facility. Take a note of this, Nakshatra, right? And we know with the rise of AI, the research is going to be crazy, students, right? You will be seeing that years of research will be conducted in just few months with the help of artificial intelligence, right? So this is your high performance computing facility that has been named Nakshatra, inaugurated by ICMR at the ICMR National Institute of Virology, that is in Pune, Maharashtra. This location is very important, so do take a note of this. Then next is DHE forms a panel to reduce the private coaching dependency. Now what we are seeing, students, in today's generation is that first a child goes to school, then after school he goes to private tuition classes, right? And there is a huge dependence on these tuition classes by the students. So what now government is planning, that is the Department of Higher Education, right? And not just this, as the child grows, he also goes for tuition classes to crack various competitive exams in order to get better colleges also, right? So this is very hectic for the students somewhere. Now what the government is planning, or the Department of Higher Education that comes under the Ministry of Education is planning, that they have formed a 11-member committee that will form various measures. They will compile a report, and in which they will be talking about various measures that will reduce the growing dependency of students on coaching centers. This high level committee of 11 members will be headed by Vineet Joshi, the Secretary of the Department of Higher Education, right? We see exams like JEE, Joint Entrance Exam, NEET for medical, JEE Advanced for your engineering colleges, right? UPSCs for various government exams. With this, what we are seeing is there is a high dependency, and these institutions, basically these exams, they require high level of coaching, they require high level of understanding of the concept of various topics, and they require hard work, right? And students tend to move towards the coaching center because they make sure that all those things that we were just discussing are done by the student. Correct. So this committee, what this will do is, this 11-member committee, it will review the advertising practices of those coaching centers, right? It will also assess the availability and effectiveness of that particular career counseling, right? That will be done in both schools and colleges to the students. Correct. And also it will review the gaps in the schooling system also, right? For example, in 11th and 12th class, we know that after these students, they generally prepare for these exams, and what they do is they opt for these coaching institutes, and they make them score, or basically they don't go to schools, they become dummy students, right?
to promote full-time coaching, right? They won't be going to schools, which is sometimes bad or sometimes good also if a students want to genuinely focus on coaching. These things will be now tackled as right education will be provided in school itself. All these coachings, right, it is not necessary for the student to go to these coachings. And also the coaching, we have seen so many incidents that were happening few past last year, that flooding was there in a coaching center that was in basement, which is, and the coaching centers that they are running, the buildings in which they are running, sometimes they are not apt for that particular method, or it is not suitable, it is not safe for the students who are going there. So all these things will be looked upon by this 11-member committee, and a proper report will be submitted here. Next is World Economic Forum's Energy Transition Index has been released. First question, which organization releases the Energy Transition Index? It is released by World Economic Forum. What is the rank of India in the Energy Transition Index? So India stands at 71st position, and it is Sweden that has secured the first position in the Energy Transition Index. Correct? Take a note of this, students. One more thing, remember, last year India's rank was 63 in 2024, and now we have dropped down to 71. Also, if we talk about China, China achieved its highest ever rank, that is 12 in this index. Pakistan is at 101st position. And now, as the name suggests, Energy Transition Index. What does this mean? Is now we need that we develop, as of now we develop in energy using various non-renewable sources of energy also, right, which creates pollution. And we know that in today's world we are shifting from non-renewable sources of energy to renewable sources of energy, so that we can make our environment more healthy and sustainable, right? So there has to be a transition from non-renewable sources of energy to renewable sources of energy or green projects, right? And this transition, Energy Transition Index, is talking about this transition only, that how well a country is adapted, or how well a country is adapting this transition. Correct? Moving on. Next, here you can see Sweden first, second Finland, third Denmark, fourth Norway, fifth Switzerland, and on 71st position is our India. Next, Quacquarelli-Symonds World University Ranking has been recently released, student, and it is IIT Delhi that ranked first among the Indian universities in India, right? If we are talking about globally, MIT secured the top position in this index, right? So this is the Quacquarelli-Symonds World University Ranking. Let me show you the data itself. This is global data. So MIT secured the first position of USA, second Imperial College of London, second position, and third is Stanford University of USA. Then if we talk about Indian universities, right, these are Indian universities, or we are talking about the list of Indian universities here. So IIT Delhi secured the first position, second IIT Bombay, and third is IIT Madras. How the list is basically generated now. This list is basically talking about various research and discoveries that are going on at that particular university. What is the employment prospectus after the students graduate? What is the global engagement? What is the learning experience that they have? What is the sustainability that they are focusing on that particular university? Next is Sudan, South Sudan, and Mali. These are among the 5 global hunger hotspots of highest concern. See, students, globally we are seeing that because of climate change, because of war and various other factors, right, mass shifting of people from one location to another is happening, right? It is one of the reasons, not everything, but you need to understand that because of which people lose their homes, people lose their money, right? And generally it becomes very hard for them in order to sustain. Even now we are seeing globally there is a huge population that cannot afford a single meal a day, right? And even we just saw recently that World Bank, they have increased the poverty level that was from $2.15 a day, that has been increased to $3 a day, right? That means a person earning $3 a day or less than $3 a day will now be considered as a below BPL, below poverty line, right? If he is earning $3, then he is not the, or he is not below the poverty line, right? See, now what this makes sure happens is, with this rising in population also, we are seeing that the hunger is increasing. A large population of the society sometimes is not able to afford food, correct? And because of which we are seeing 5 global hunger hotspots we have identified, correct, that is of highest concern. We are seeing that the people here are suffering and they are not able to get the proper food, right? There is acute
acute insecurity of food there. This report warns that hunger is likely to get much worse in 13 countries and regions which are among the world's most serious hunger affected areas in the coming months. Which are these countries? Sudan, Palestine, South Sudan, Haiti and Mali. They remain the highest concern level. Also, this report identified that conflict, economic shocks, climate related hazards, these are the primary cause of starvation. Apart from these, Burkina Faso, Chad, Somalia, Syrian Arab Republic, these are some of the hotspots that will be facing high food insecurity in the coming years. Moving on. Next is banking and finance students. Bajaj Alliance has launched the India's first state-wise health insurance policies. So, Pune, Maharashtra based Bajaj Alliance General Insurance, that is a joint venture between Bajaj Finserv and Alliance, has launched first of its kind state-wise health insurance policy, that is customized health insurance tailored to the specific health needs, treatment cost and medical infrastructure of 25 Indian states and 5 union territories. Moving on, next we are talking about economy and business. Our country ranked 15th among the top FDI destinations with 27.6 billion inflows in 2024 as per the data released by UNCTAD. Right, let's jump into the data. India, right, we just saw 15th position, right, is ranked 15th here. If we are talking about India's FDI in 2024, it declined by 1.9% in 2024 as compared to 2023. In 2023, we received $27.6 billion of inflows of FDI. In 2024, we received 27. I correct myself. In 2023, we received $28.1 billion of inflows, and in 2024, we received $27.6 billion in inflows. You can see a drop of 1.9%. Right? If we see global FDI flows, they were 4% higher, and it reached $1.5 trillion of inflows. Right? If we see the data here, USA continues to be the leading country for both FDI inflows and outflows. India's ranking for FDI improved 15th, that was earlier 18th. Now, one more thing, students. Home country is where FDI originates and host country is where FDI goes. So, if we talk about top 5 host countries first, right, that are receiving the FDI. So, it is USA on top position, then Singapore on second, Hong Kong of China third position, then China on third, and Luxembourg on 4th, and 15th is our India. If we talk about top 5 home countries from where the FDI is originating and going, so USA again on top, Japan is second, China on third, Luxembourg on 4th, and Hong Kong on 5th position. Correct? So take a note of this list also. It is quite important and can be asked about whether host country or home country. And in this home country, India is at the 18th position. Next is ICRA, that is Indian Credit Rating Agency, right, or Investment Information and Credit Rating Agency, right. It is Gurugram, Haryana based. This is a leading credit rating agency, and they have released their output or outlook for India's GDP, and it stated that it projected that India will be growing by 6.2% in FY26. Right. Next is TCS, Tata Consultancy Service. It is Mumbai, Maharashtra based, and they have entered into a strategic collaboration with Paris, France based CEB, that is Council of Europe Development Bank, that will modernize their reconciliation operations using artificial intelligence and automation. Moving on. Next is appointments and resignation, students. Skechers is a brand, right? It is California, USA brand, and they have recently appointed Karthik Aaryan as their brand ambassador for the Indian market. If you like, yesterday we discussed that Maldives has appointed Katrina Kaif as their brand ambassador for promoting tourism in Maldives. Next is acquisitions and mergers. Ugro Capital to acquire Profectus Capital for 1,400 crore rupees. 100% acquisition will be done here. Then next is GFSL Jetis, Geo Financial Service Limited. It is a NBFC arm of Mumbai, Maharashtra based Reliance Group, and they have acquired the remaining 17.83% stake in Navi Mumbai, Maharashtra Geo Payments Bank Limited from
SBI for 104.54 crore rupees at a 13.22 rupees per share. Next is science and tech. Honda Research and Development, right? R&D. They have conducted a reusable rocket test in Japan, right? So what is this reusable rocket? See, SpaceX is so much valued today because of their reusable rocket. Reusable rocket brings the cost of operation significantly down because you do not have to make a rocket again for the next launch. You can reuse that rocket. You just have to do some checking. You have to do some changes if there anything, or just clean it and do the maintenance and repair, and you are good to go. So now Honda R&D, they have conducted a reusable rocket test in Japan. Take a note of this. This is quite an interesting development we will be seeing. Next is books and authors. Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin has launched a book that is Varalaru Korum Tamil Nadu Kasugal. Right, this is the name of the book. It has been launched by Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin. Right, remember, this is Coins That Speak Tamil Nadu's History. This book has been authored by whom? Authored by Thangam Thanarasu. Right, he authored the book. Right, this book is talking about the ancient coins, right, the history that is associated with it, right, and their historical significance and the cultural impact it shows. Then next is important is World Refugee Day, observed on 20th of June. It is to recognize the honor, or it is to honor the refugees and recognize their strength and courage in the fleeing conflict or any problem that we are seeing, right? And these refugees, they tend to face a lot because we see, for example, let's take the war of Ukraine right now, right? We are seeing Israel and Iran is on a war. So people will move from these locations to a safer location, right? And they are considered refugees, right? Because they have left their house because of any conflict or a problem that is going on, right? And we have seen in the past also, when Ukraine-Russia war started, multiple refugees, they entered into the Europe. Coming back, this day is observed by United Nations High Commissioner for Refugees and World Health Organization, and there is a theme here, solidarity with refugees. This day was observed initially on 2001. Then next, students, state news. UP government has approved 1.5 crore rhino conservation project in Dudhwa National Park. Important. Where is Dudhwa National Park located? It is in Uttar Pradesh. And recently, government has approved 1.5 crore rupees for the rhino conservation project, where we will be focusing on the conservation of rhinos. Right? So these are your important current affairs for the day, students. Now we will be moving on to the revision part. And one more thing in here, students, remember these in Dudhwa National Park, there are one-horned rhinos. Right? Apart from this, tell me which is the famous national park that is associated with these rhinos. It is in India, a state where we will be finding this national park. It is specifically famous for this. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आईपीएल के हिसाब से बतानी है. ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है. सी कह रहा है सूर्य कुमार यादव, इन्होंने एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता विद अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख रुपीज. तो नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं, साई सुदर्शन, इनको एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया. अब ऑप्शन तीनों सही रहेंगे. नेक्स्ट, 39th COSPAS SARSAT, that is Space System for Search of Vessels in Distress, Search and Rescue Satellite Aided Tracking Joint Committee मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम 27 मई को हुई. किस कंट्री ने इसको होस्ट किया? तो ये UAE के द्वारा होस्ट की गई थी. Next, mention the Indian university that recently developed India's first gene-edited sheep in May using CRISPR-Cas9 gene editing टेक्नोलॉजी. तो शीप में जीन एडिटिंग की गई है. एंड कौन सी है वो इंडियन यूनिवर्सिटी? वो है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 5 जून. तो किसने इनॉग्रेट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया. नेक्स्ट आ जाते हैं. ड्यूरिंग अ 3-day विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पराग सेंटियागो पेना प्लास्किस्टो टू इंडिया इन जून, यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर एंड रूबेन रेमरेज, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पराग के, इन्होंने एक MOU साइन किया, राइट,
टू इस्टेब्लिश व्हाट, एक जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान जिनको न्यूली डेजिग्नेट किया गया एज द रामसर साइट्स। तो 2 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, दोनों राजस्थान में हैं, एक है खिचान एंड दूसरी है मेनार। तो अब राजस्थान में तो हो गई हैं 4 रामसर साइट्स एंड इंडिया की टोटल अगर हम देखें तो 91 आ गई है, जो कि हम 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली हैं। फर्स्ट पे है यूके विद 175 रामसर साइट्स इन यूके एंड सेकंड पे आ जाता है मैक्सिको विद 142 रामसर साइट्स एंड इंडिया 3rd पोजीशन पे है विद 91 रामसर साइट्स। एक और चीज, ये जो मेनार है ना, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने अभी जीती प्रेसिडेंसी ऑफ डैश अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 28 टर्म के लिए। तो इंडिया, इन्होंने प्रेसिडेंसी जीती ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, राइट, एंड 2025 से 2028 टर्म के लिए इनके द्वारा ये जीती गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 कंट्रीज एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026-27 टर्म के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दैम। तो इसमें से अगर हम देखें तो नॉर्वे इज नॉट अमंग दैम, नॉर्वे की जगह याद रखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब लेटिविया, लिबेरिया, कोलंबिया एंड बहरीन, राइट, ये सब इसमें रहेंगी, मार्क करेंगे, जो कि 2 साल के लिए अभी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं एज द यूनाइटेड नेशंस नॉन परमानेंट मेंबर। ये किनको रिप्लेस करेंगी या फिर कौन सी कंट्रीज यहाँ से हटाई गई हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अल्जीरिया, गायना, सियरा लियोनी, साउथ कोरिया एंड स्लोवेनिया, इनको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च द इंडिया का पहला इंडेक्स फंड टैकलिंग BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स इन जून 2025। तो मोतीलाल ऑसवाल्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एज पर द अप्रूवल बाय CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून, वॉरबर्ग पिनकस LSE ये एक्वायर करेंगे 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड $13.3 बिलियन का एक्विजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एक और जो कि है न्यूयॉर्क USA बेस्ड इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का बाय न्यूयॉर्क USA बेस्ड ओमनिकॉम ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है कहाँ पर? तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम में लोकेटेड है। यहाँ पर आपके 107 वन हॉर्न राइनोज देखने को मिले 2022 के राइनो सेंसस में एंड यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है हमें राइनोज की, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे 0 राइनो मोर्टेलिटी देखने को मिली। Moving on, which state in India achieved 100% success rate in the foundational literacy and numeracy assessment test under उल्लास नव भारत सशक्तता कार्यक्रम इन जून 2025? तो किस स्टेट ने इंडिया में अचीव करा 100% सक्सेस रेट? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट हेक्टेयर्स में अगर आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है इन मल्टी प्रोडक्ट SEZ एज पर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जून 2025 में। तो मिनिमम रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स कितनी है? तो 4 हेक्टेयर की मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द 80 न्यू मेंबर नेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब से कब तक? 2026 से 2028 तक, 3 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, राइट। एंड इंडिया वन ऑफ द 18 नए मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट किए गए। उन 2 कंट्रीज का नाम बताओ जिनको ऐड किया गया एज द प्रेसिडेंसी और जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जनरल असेंबली का 2025 से 2029 टर्म के लिए। तो मलेशिया एंड UAE मार्क करके चलेंगे। ऑप्शन सेकंड A एंड C राइट रहेगा। नेक्स्ट, अभी मई के महीने में इंडिया ने कंडक्ट किया एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि है नोमैडिक एलिवेंट, कहाँ पर? मंगोलिया में, राइट। एंड ये 17th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्च क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस मई के महीने में टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड डाटा गैप्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो, क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वर रिकमेंडेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो
आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार, इनको इलेक्ट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी एज ऑफ मई 2025? तो तुहिन कांता पांडे, राइट, ये चेयरमैन है ऑफ सेबी। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट इन रिलीज की गई इसरो के द्वारा, जिसमें बताया हाउ मेनी इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैव बीन प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। तो तब से लेके अभी तक 136 इंडियन स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया गया है इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि 22 इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर सकें। यह है भारत जेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है, एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एंड ये एआई डेवलपमेंट को रेवोल्यूशनाइज करेगा, जिससे कैसे लैंग्वेज का सपोर्ट प्रोवाइड करा के। ऑल्सो इस समिट के दौरान एक जनरेटिव एआई हैकाथॉन देखने को मिली, ताकि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सके, राइट, ताकि एआई सॉल्यूशंस डेवलप कर सके फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुई, टू एनहांस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ निर्वेशक शिविर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद सेबी, ताकि इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ावा दिया जा सके। एंड इसके अंदर होगा क्या, निर्वेशक शिविर के अंदर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, राइट, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको यहाँ पे ये रिडीम कर पाओगे आप इजीली। तो इसको लॉन्च किया गया निर्वेशक शिविर के पहले एडिशन को, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, ओपेल सुचेता चोंगश्री, राइट, कहाँ से हैं, जिनको क्राउन किया गया एंड शी इज फ्रॉम थाईलैंड, जो अभी क्राउन की गई मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेजेंट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। नेक्स्ट, एनालेना बैरबॉक, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन जून सक्सीडिंग फिलेमॉन यांग? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट ये अपॉइंट की गई हैं एंड ये 5वीं वीमेन बनेगी जो लीड करेंगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। करेक्ट, 167 वोट से जीती आउट ऑफ 188 वोट्स। ये 80वां सेशन था ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल एंड्रेस डूडा को सक्सीड करके। तो कैरोल नवरोस्की, राइट, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट, identify the organization which appointed Rajiv Memani as the president for FY26 succeeding संजीव पुरी। तो CII के प्रेसिडेंट बन गए हैं राजीव मेमानी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि बार्सिलोना में हुई थी, वो है ऑस्कर पिएस्ट्री। ऑस्कर पिएस्ट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्कर पिएस्ट्री आपके यूके से बिलोंग करते हैं, मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई से। ये वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के पार्ट रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में एंड 2023 में इन्होंने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट, विच 2 ग्लोबल कंपनीज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन, ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को विद फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन एज अनाउंस्ड इन मई 2025। तो ये है वनवेब एंड स्पेसएक्स। वनवेब यूके का है, स्पेसएक्स यूएसए का है, इलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, एंड एक और चीज, स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ टाइप किया था एंड जियो के साथ टाइप किया था, ताकि सैटेलाइट इंटरनेट लोगों के घर तक पहुंच सके। Next, what is the maximum investment limit for retail individual investor in IPO as per the current Securities and Exchange Board of India norms? तो मैक्सिमम इन्वेस्टर की लिमिट क्या है फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर? 2 लाख रुपए तक का वो IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निकारागुआ, इनको रिसेंटली बिकेम 101st मेंबर टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। Next, as per RBI data released in June, Dash accounted for the largest share of total bank deposits at 59.5% in FY25. So, as per the RBI data released in June, which accounted
टर्म डिपॉजिट इट अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लोग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं बल्कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, एंड वहां पर पैसा आपका ज्यादा हमें लगता हुआ दिख रहा है। जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, करंट डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें गिरती हुई देखिए। टर्म डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग थी विद 59.5% डिपॉजिट्स। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिटॉल for their product Icy Cool, who became their brand ambassador recently? Second question, tell me who has been appointed as the part-time member of the 16th Finance Commission recently? Third question, who has been appointed as the MD and CEO of Axis Max Life Insurance? Fourth question, tell me what is M1 and M2 money supply? Right, differentiate between them and explain them. Fifth question, who has been appointed as the Deputy Chief Executive Officer of SBI General Insurance? And one sixth more question students, it is important. Tell me recently who has been appointed as Managing Director of City India Solutions. Right, then let's move to seventh questions also. Then tell me recently a exercise was held between India and Mongolia. Name that exercise, which edition of that exercise was held, and which force took part here, and from Indian side which part or which troops of that force took part. So these are your homework questions students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ चेंजेस आए हैं। देन हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल कंसल्टेशन ऑफ जेंडर बजटिंग जो हमें अभी देखने को मिली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। देन इंडिया की पहली हाइड्रोजन बस को अभी फ्लैग ऑफ किया गया, कहाँ किया गया उसको डिस्कस करेंगे। एंड नक्षत्रा को डिस्कस करेंगे जो कि अभी लॉन्च किया गया ICMR के द्वारा। ऑल दीज थिंग्स एंड मैनी मोर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टूडेंट्स सुबह 5 बजे हम डेली बेसिस पे ये वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इनको देखना मत भूला करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड लाइक कर दो आज के सेशन को। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करें। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था एंड 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गया। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके तौर पे लॉन्च किया गया था, क्योंकि 2003 के बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका NPS आ गया था एंड आपका ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो गया था। तो अब UPS लाया गया था कि सिमिलर टाइप ऑफ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। अब इसमें कुछ रिवाइज इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने ऑप्ट किया है, अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप NPS पे भी जा सकते हैं या OPS पे जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जो गवर्नमेंट UPS को अडॉप्ट करेंगे उनको बेनिफिट्स मिलेगा अंडर दिस OPS इफ द एम्प्लॉयज डायल विद इन द गवर्नमेंट सर्विस और डिस्चार्ज ड्यू टू इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट, तो उनको यहाँ पे उसके OPS के बेनिफिट मिलेंगे। एडिशनली एम्प्लॉयज जिनकी मिनिमम 10 साल की सर्विस हो जाएगी, दे आर एंटाइटल्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन अपॉन सुपरनेशन। इसी के अलावा अगर डेथ हो जाती है तो उसके टाइम पे जो ग्रेचुइटी है उसकी भी यहाँ पे लिमिट है, वो है 25 लाख रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करेंगे 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एंड DA राइट इन दिस, वाइल द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 18.5%। ये आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द
टेन्योर जब आपकी सर्विस खत्म होगी, ये जो अमाउंट कैलकुलेटेड होगा ना, ये आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अंडर ओपीएस, सॉरी अंडर यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओपीएस में जो आप अपना पैसा पीपीएफ में डिडक्ट कराते थे वो मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर ये जो पैसा डिडक्ट कराएंगे ये नहीं मिलेगा। एनपीएस में भी इस पे लिमिट है कि आप कुछ शायद 40% तक इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, रेस्ट 60% से आपकी पेंशन बन जाएगी, लेकिन यूपीएस में आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इस सारे से आपकी पेंशन बन जाएगी, राइट। तो ये कुछ चेंजेस हैं, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल कंसल्टेशन ऑफ जेंडर बजटिंग इन न्यू दिल्ली। मेन एम इसका क्या है? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, राइट। जेंडर बजटिंग की गई है कि जो हम मेन एंड वीमेन पे खर्च करते हैं वो इक्वल कहीं ना कहीं हम खर्च करें, इक्वली उनको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। विज्ञान भवन में इसको लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल कंसल्टेशन है ऑन जेंडर बजटिंग। इसका एम क्या रहेगा? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना इन इंडिया। ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे अन्नपूर्णा देवी, राइट, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब का, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। एंड जेंडर बजटिंग प्रोसेसेस जिसमें पॉलिसी ब्रीफ्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा, राइट, ये सब यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। ऑल्सो 4.49 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इंडिया की पहली हाइड्रोजन बस को फ्लैग ऑफ किया गया इन लेह लद्दाख। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा विकास सर ने बताया था कि हाइड्रोजन बसेस का ट्रायल चल रहा है, कहाँ पे? पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है लेह लद्दाख में। अब वो पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया है एंड इट वाज अ सक्सेसफुल रन, एंड अब हम देख रहे हैं कि पहली हाइड्रोजन बस को फ्लैग ऑफ किया गया है लेह लद्दाख में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाइड्रोजन होता है जब हम इस फ्यूल को बर्न करेंगे तो वेपर वाटर मिलेगा हमें इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, कोई भी कार्बन कंटेंट यहाँ पे रिलीज होता हुआ नहीं दिखता है हमें, इसीलिए इसको ग्रीन फ्यूल बोला जाता है, क्लीन फ्यूल बोला जाता है। एनटीपीसी के द्वारा इसको यहाँ पे इन बसेस को लॉन्च किया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। एंड अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कौन रहेंगे? वो हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1975 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आईसीएमआर, इन्होंने नक्षत्र को इनॉग्रेट किया। ये क्या है? एक एचपीसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, जो कि आईसीएमआर एनआईवी, आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे, राइट। दूसरी चीज, ये जो नक्षत्र है ये क्या है बेसिकली? इससे हम देखेंगे एआई का यूज करते हुए यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेज जोरों शोरों से होगी, राइट। हम देखेंगे कि आज के टाइम पे जो एआई आ गया है उसकी मदद से कैसे जो सालों का रिसर्च होता था वो अब कुछ महीनों में होता हुआ हमें दिखेगा, करेक्ट। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा एंड इस फैसिलिटी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इनके द्वारा एक पैनल इस्टेब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स ये मार्क करेंगे, ये जो पैनल है प्राइवेट कोचिंग पे जो बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं उसके ऊपर ये पैनल लॉन्च किया कि कैसे हम उस डिपेंडेंस को रोक सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं बच्चा पहले स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर आके ट्यूशन्स पे जाता है, राइट। एंड अगर वो कोई कोचिंग ले रहा है, ये तो स्कूल की ट्यूशन्स की कोचिंग, ट्यूशन हो गया स्कूल की कोचिंग, लेकिन अगर उसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, या फिर यूपीएससी कितना बड़ा हमारा एग्जाम होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, तो इन पे बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। इवन एक ट्रेंड देखा गया, जो 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो नॉन अटेंडिंग हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इन कोचिंग पे फोकस करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने का यहाँ पे काम किया जाएगा। डमी स्कूल्स काफ़ी ऑपरेट होने लग गए हैं, तो इस प्रैक्टिसेस को रोका जाएगा। एक और चीज़ हम देखते हैं कि बच्चों के जो मेंटल स्टेट है ना, वो बहुत इफेक्ट होती है इससे। दूसरा, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिससे जो बच्चे की लाइफ है उसको भी थ्रेटनिंग यहाँ पे बनाया जाता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, राइट। तो ये एक 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जो कि विनीत जोशी के द्वारा हेड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लॉन्च किया गया। देखो सबसे पहले ये समझो, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ट्रांजिशन हो सके, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे प्रोजेक्ट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोजन बसेस हैं, ये क्या है, ये आपका एक एग्जांपल है ग्रीन ट्रांजिशन का, एनर्जी ट्रांजिशन का। पहले हम डीजल पेट्रोल को यूज करते थे बसेस में, अब हम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करेंगे, जो कि एक ट्रांजिशन है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो कि पॉल्यूशन नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज इज रियल, इससे काफी इफेक्ट हो रहा है। एंड वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि कंट्रीज, इवन बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रांजिशन कर रही हैं, जो कि वो एनर्जी यूज करती हैं कि या फिर जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हैं, तो वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इवन एआई इतना आ गया आज के टाइम पर, एआई जो मॉडल्स हैं उनको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इनको भी रन करने के लिए जो बोला जा रहा है कंपनीज के द्वारा कि हम फोकस करेंगे कि हम जो एनर्जी यहां से कंज्यूम करें वो ग्रीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हो, राइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक है 71। एक सैड न्यूज कि इंडिया की रैंक पहले 63 थी 2024 में, जो कि गिर के अब 71 हो गई है। टॉप किसने किया? स्वीडन की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हमें देखने को मिली। अगर हम इंडेक्स देखें तो स्वीडन फर्स्ट, सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ नॉर्वे, फिफ्थ स्विट्जरलैंड एंड 71st पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे रिलीज की गई, बोथ ग्लोबली एंड इंडिया की, राइट। पहले हम देखते हैं ग्लोबल। MIT of USA secured फर्स्ट पोजीशन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन सेकंड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। इंडिया की बात करें तो IIT दिल्ली फर्स्ट, सेकंड IIT बॉम्बे एंड थर्ड IIT मद्रास। अब ये जो इंडेक्सेस हैं, राइट, ये किस चीज पे फोकस करते हैं, कहां से ये डाटा रिलीज किया जाता है, क्या मैट्रिक होता है? तो फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी हो रही है, एम्प्लॉयबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, ग्लोबल एंगेजमेंट कितना है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या मिलते हैं वहाँ पर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है वहाँ उस यूनिवर्सिटी में, राइट, कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होता है, राइट, एंड कितने वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चों को ग्रो करने के लिए। तो ये आपके फोकस में रहते हैं, जिसके बेसिस पे ये क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स सुदान, साउथ सुदान, माली, दीज आर अमंग द 5 ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स ऑफ हाईएस्ट कंसर्न। देखो ग्लोबली हम देखें तो हंगर बढ़ता जा रहा है, राइट। लोगों को एक टाइम का भी प्रॉपर न्यूट्रिशनल मील मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है कई एरियाज में, राइट। बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जो कि जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता। रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज, राइट, वॉर हो रही है, इनकी बदौलत जो लोग हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उनके फाइनेंसेस पे, उनको रेफ्यूजी बनना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, राइट, बिकॉज ऑफ वॉर या क्लाइमेट चेंज या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। तो इन चीज़ों की मदद से, एंड इवन कई पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रॉपर वेजेस नहीं है, वहाँ पर लोगों के पास इकोनॉमी नहीं है, राइट, उनका प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं जो भूखमरी है, या फिर हम भूख बोलें, भूखमरी तो हो गया कि बिकॉज ऑफ हंगर लोगों की डेथ होने लग जाए, राइट, उनको एक टाइम का प्रॉपर मील भी नहीं मिल रहा, राइट। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में ये हंगर, राइट। जो लोग हैं अभी वो बढ़ते हुए दिखेंगे जो कि प्रॉपर फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहीं पर हम देखें ये डाटा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर रिलीज किया गया। सुदान, पैलेस्टीन, साउथ सुडान, हैती, माली, राइट, बुर्किना फासो, चैड, सोमालिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, ये वो कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हमें हंगर बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। बजाज अलायंस इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपके स्टेट के हिसाब से वहां के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड हेल्थ केयर नीड के हिसाब से यहां पर ये स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर स्टूडेंट्स। इंडिया की रैंक 5th रही इन द टॉप FDI डेस्टिनेशंस विद $27.6 बिलियन इनफ्लोज इन 2024। ये 1.9% कम है लास्ट ईयर के, राइट। इंडिया का जो FDI इनफ्लो है वो गिर गया 2000, अगर मैं 23 की बात करूं तो $28.1 बिलियन का इनफ्लो था, जो कि अब गिर के 2025 में $27.6 बिलियन रहा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो जो
एफडीआई इनफ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखा बाय ऑलमोस्ट 4%, जो कि अब बढ़ के 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यहाँ पे देखो एक चीज होती है होम कंट्री, होम कंट्री होती है जहां से एफडीआई जनरेट होता है, होस्ट कंट्री होती है जहां पे एफडीआई जाता है, राइट। अगर मैं बात करूं टॉप 5 होम कंट्रीज की जहां से एफडीआई ओरिजिनेट होगा तो यूएसए ने यहां पे टॉप किया, राइट। यूएसए टॉप पर रहा, फिर जापान आ जाता है, चाइना थर्ड पे, लग्जमबर्ग फोर्थ पे, हांगकांग फिफ्थ पर, इंडिया आ जाता है 18th पोजीशन पर यहां पर जहां से एफडीआई जनरेट हो रहा है। अगर मैं बात करूं टॉप 5 होस्ट कंट्रीज की जहां पे एफडीआई जा रहा है तो वहां पे भी यूएसए टॉप पर रहेगा। यूएसए के बाद आ जाता है सिंगापुर ऑन सेकंड, फिर हांगकांग ऑन थर्ड, चाइना एंड फिर लग्जमबर्ग। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आईसीआरए, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड। ये गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने इकोनॉमिक जीडीपी प्रोजेक्ट या फिर इन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक दिया है इंडिया की जीडीपी का एट 6.2% फॉर FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन्होंने पार्टनर किया काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ टू मॉडर्नाइज देयर ऑपरेशंस, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एआई एंड ऑटोमेशन की मदद से सीईबी काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक, इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा एआई की मदद से एंड ऑटोमेट यहाँ पे कई सारी सर्विसेज की जाएंगी। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, एआई के आने से ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेनिफिट होंगे, लेकिन इसके से जॉब लॉसेस भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। स्केचर्स ने अपॉइंट किया कार्तिक आर्यन को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन मार्केट। कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड ये स्केचर्स कंपनी है एंड यहीं पे याद रखेंगे कैटरीना कैफ को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था फॉर टूरिज्म मालदीव्स का, ताकि मालदीव्स में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। यूग्रो कैपिटल ने एक्वायर किया प्रोफेक्टस कैपिटल फॉर 1400 करोड़ रुपए, 100% एक्विजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिली। नेक्स्ट एक्विजिशन है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इन्होंने एसबीआई का स्टेक जो था 17.83% का इन जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड उसको एक्वायर कर लिया है 104.54 करोड़ की लागत से। हर शेयर 13.22 रुपीज पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे खरीदा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक पर। होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज करी, रियूजेबल रॉकेट को टेस्ट किया जापान में। देखो जो स्पेस एक्स है वो आज इतने बड़ी कंपनी क्यों बन गई, जो उनका मोड था, राइट, जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे स्पेस एक्स इतना बड़े स्केल पे ग्रो कर सका, वो है रीयूजेबल रॉकेट, राइट। इन्होंने पहले क्या होता था, रॉकेट को यूज किया, सैटेलाइट लॉन्च करी, ये रॉकेट खराब हो गया। अब इस रॉकेट को वापस प्रॉपर तरीके से लैंड किया जाता है एंड वापस से रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके इसका नेक्स्ट लॉन्च के लिए इसको रेडी कर दिया जाता है, राइट। तो ये रीयूजेबल हो गया, इससे बहुत कॉस्ट बचती है, आपको नया रॉकेट नहीं बनाना पड़ता स्क्रैच से, राइट। इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। तो होंडा R&D ने, जो कि टोक्यो जापान बेस्ड है, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर रीयूजेबल रॉकेट को टेस्ट किया जापान में। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टूडेंट्स। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है, कॉइन्स दैट स्पीक्स तमिलनाडु हिस्ट्री। इस बुक को थंगम थेनारासु इनके द्वारा यहाँ पे ये ऑथर हैं इस बुक के, राइट। एंड बेसिकली ये बुक बताती है कि जो हिस्ट्री है कॉइन्स की तमिलनाडु से रिलेटेड, राइट, जो कल्चर है उसके बारे में इस बुक में दर्शाया गया है। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है रेफ्यूजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड वर्ल्ड वाइड जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके टाइम पे जो ये करेज दिखाते हैं, राइट, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है इनके थ्रू, इस डे के थ्रू। UNHCR के द्वारा एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, थीम है सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। एंड 2001 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 1.5 करोड़ रुपए अलॉकेट किए हैं राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि दुधवा नेशनल पार्क में रहेगा, राइट। एंड 1 हॉर्न राइनोज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, इनकी डे टू डे जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए एंड इनको बेसिकली कंजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और 1.5 करोड़ रुपए इनको यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं दुधवा नेशनल पार्क में राइनोस को कंजर्व करने के लिए। 1 हॉर्न राइनोस। आपका एक होमवर्क और दे रहा हूं कि 1 हॉर्न राइनोस कहां पे फेमस है इंडिया में, कौन से नेशनल पार्क में, और ये नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अभी इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 38 विद इमीडिएट इफेक्ट। राइट, इन्होंने ये कहा जा रहा है कि 18 तो 50s मारी है यहाँ पे, मतलब हाफ सेंचुरी, एंड 12 फुल सेंचुरी मतलब 100 रन यहाँ बनाए। इनको 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। नेक्स्ट, किस ऑटोनोमस बॉडी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिवाइव किया एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि है द्रव्यकर्त्रकरा निगंथु एंड द्रव्यमकारा निगंथु। राइट, तो ये किस ऑटोनोमस बॉडी ने अभी एंशिएंट आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिवाइव करा? तो ये रहेगी आपकी सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया MRSAM जो कि है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0 को इन कोलैबोरेशन विद एरोस्पेस सर्विस इंडिया एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑन 7 मई इन दिल्ली। तो वो है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज कम्स अंडर किस मिनिस्ट्री के? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? तो ये आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। नेक्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द ऑप्शन बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन 7 मई इन रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक जो कि पहलगाम में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। क्यों? क्योंकि सी कह रहा है कि इंडिया ने इसके अंदर 10 टेररिस्ट लिंक लोकेशंस को पाकिस्तान एंड POK जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया। तो नहीं, 10 लोकेशन नहीं थी, 9 लोकेशंस में यहाँ पे अटैक करते हुए दिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द न्यू सीलिंग ऑन द गारंटी कवर पर बोरोवर अंडर द एक्सपेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एज नोटिफाइड बाय DPIIT इन May। तो व्हाट इज द न्यू सीलिंग ऑन द गारंटी कवर पर बोरोवर अंडर द एक्सपेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स? तो जो नई लिमिट आई है वो कितनी आई है? 20 करोड़ रुपए की। न्यू सीलिंग क्या आई है? वो है 20 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू टर्न वाटर पॉजिटिव विद अ 14 गीगावाट ऑपरेशनल पोर्टफोलियो। तो ये अडानी कंपनी है। ये वाटर पॉजिटिव मतलब जितना पानी इन्होंने यूज़ किया अपने ऑपरेशंस के बाद, उसके बाद जो वाटर रिलीज हुआ वो क्लीन वाटर था, सस्टेनेबली उसको यूज़ किया गया एंड उसको पॉजिटिवली जितना यूज़ किया उससे ज़्यादा ही इन्वायरमेंट में इन्होंने वाटर को रिलीज़ किया। तो यह है अडानी पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट है, इन अप्रैल द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है लोकेटेड इन साउदर्न फ्रांस, इन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया बाय डेवलपिंग देयर मेन मैग्नेट सिस्टम विद इंडिया जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द लिस्ट जो इन्वॉल्व नहीं है इस ITER प्रोजेक्ट में जो कि है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इनमें से देखिए फ्रांस वो कंट्री नहीं है जो कि इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे इसका पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट, इनको इलेक्ट किया गया 267th पॉप ऑफ द कैथोलिक चर्च आफ्टर द डेथ ऑफ पॉप फ्रांसिस। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है जो नए पॉप बने ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये USA से बिलोंग करते हैं एंड ये पहले इंडिविजुअल है फ्रॉम USA जो कि पॉप बने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्होंने डिलीवर किया INS अरनाला को जो कि वन ऑफ द 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया गया कटुपल्ली तमिलनाडु में। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया था ये पूछा गया है। तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड इन May इन न्यूयॉर्क USA। तो वो है सुशील कुमार अवस्थी। नेक्स्ट, which of the following social security schemes completed 10 years since their launch in May having been introduced by Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो तीनों ये वो स्कीम रहेंगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर आ जाते हैं, अभी एक स्टडी प्रिपेयर की गई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद डैश एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट लद्दाख के में सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है स्नो लेपर्ड की। राइट, तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर।
नेक्स्ट, किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम मई में, दैट कोलैबोरेटेड विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। ये डीके बैंक भूटान का पहला डिजिटल बैंक है। तो इन्होंने भूटान गवर्नमेंट ने बाइनेंस पे के साथ एंड डीके बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि टूरिज्म में क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, ताकि टूरिज्म बढ़ सके भूटान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर नेट्राडिन एंड जस्पे कौन सी कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न बन गई है इंडिया की आफ्टर रेजिंग $200 मिलियन इन सीरीज एफ फंडिंग राउंड। तो वो है पोर्टर। पोर्टर क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स ले जाती है, राइट। जैसे आपका ऊबर हो गए, ओला हो गए फॉर ह्यूमंस के लिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिमिलरली गुड्स के लिए, राइट, को आपको सामान भेजना है तो उसके लिए पोर्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें गवर्नमेंट ऑफ डैश एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन्होंने एमओयू साइन किए 2 जो फोकस करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एक पब्लिक प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कौन सी, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड इन स्पेस के द्वारा ये 2 एमओयूज साइन किए गए। नेक्स्ट, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी ये एंटर करते हैं इनटू अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू बाय हाउ मच % स्टेक इन येस बैंक लिमिटेड वैल्यूड एट 13,483 करोड़ रुपीस। तो 20% स्टेक यहाँ बाय करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं विराट कोहली, राइट। इन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेस्ट विन परसेंटेज अंडर कोहलीज कैप्टेंसी। तो 58.82% टाइम जब कोहली कैप्टन बने तो हमने यहाँ पर मैच जीता। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये ग्लोबल कैंपेन है सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाइनली ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ एंड अक्टूबर मंथ। इस बार मे मंथ में देखें तो 10 मई को एंड अक्टूबर को देखें तो 11 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाएगा। साल में 2 बार इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। 11 मई को इसको ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ये मार्क करता है द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ 11 मई 1998 जब इंडिया ने पोखरान 2 टेस्ट किया था जो कि ऑपरेशन शक्ति था, न्यूक्लियर टेस्ट था एंड ऑल्सो हंसा 3 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो इनको ऑनर करने के लिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने 27वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो तीसरी हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन सी है, वो है कंचनजुंगा। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को मई 2025 में टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड दिस ब्रह्मोस। तो कहाँ पे इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया इसको, लखनऊ यूपी में इनॉग्रेट किया, राइट। एंड ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एंड डीआरडीओ की मदद से इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किन्होंने टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटी एज पर द डाटा और लेटेस्ट डाटा ऑफ पीएमआई जो कि है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय जेपी मॉर्गन। तो हमारी कंट्री इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया अमंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज में। नेक्स्ट, mention the name of the bank becoming the first from the Middle East and African region to open their branch in GIFT IFSC। तो वो कौन सा बैंक है, वो है कतर नेशनल बैंक ग्रुप। नेक्स्ट, वाटर हेरिटेज म्यूजियम ये कहाँ पर है पूछा जा रहा है। इनको अभी रिसेंटली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का, उसमें ऐड किया गया एंड ये तीसरा जगह है जिसको अभी ऐड किया गया है। ये पूछा जा रहा है लोकेटेड कहाँ पर है वाटर हेरिटेज म्यूजियम, तो कोझिकोडे केरला में ये लोकेटेड रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जल वाटर म्यूजियम एंड लिविंग वाटर म्यूजियम, इन दोनों को भी ऐड किया गया था। जल वाटर म्यूजियम उदयपुर में है एंड लिविंग वाटर म्यूजियम ये आपका पुणे में है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वन द रिस्पेक्टिव मेंस एंड वीमेंस 2025 एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जो कि अल आइन यूएई में देखने को मिला। तो आइवन जेमलेंस्की एंड अलुआ नुरमन इन दोनों ने मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली एशियन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप को जीता जो कि यूएई में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं सुबन्ना अयप्पन जो कि एक रिनोन इंडियन एक्वाकल्चर साइंटिस्ट हैं एंड पहले नॉन क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं। टू लीड विच ऑर्गेनाइजेशन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इन्होंने लीड किया था जिनका भी रिसेंटली निधन होता हुआ हमें दिखा। 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विद लंका पे टू एनहेंस श्रीलंकाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग को ब्रांडेड डेबिट कार्ड एंड AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने यहाँ पे अभी लंका पे के साथ पार्टनर होते हुए दिखे।
नेक्स्ट, उस गेम का नाम बताओ दैट वाज ऑफिशियली सस्पेंडेड बाय तालिबान इन मे ड्यू टू द कंसर्न्स ओवर गैम्बलिंग एंड रिलीजियस अलाइनमेंट्स विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो ये रहेगा चेस गेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन फॉर FY25। तो इसमें से देखें तो वो वेस्ट बंगाल नहीं है। अगर हम डाटा देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पर आ जाता है, कर्नाटका सेकंड पे आ जाता है, गुजरात थर्ड पर आ जाता है, तमिलनाडु फोर्थ पे आ जाता है एंड यूपी हमारा फिफ्थ पे आता है। नेक्स्ट, उस पहली इंडियन सिटी का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया बेगर फ्री। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिन्होंने अप्रूव किया इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जो इंडिया की यूजीसी को, इन May 25 टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन मुंबई महाराष्ट्र। तो वो पहली अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में अपना एक कैंपस ओपन करेगी। तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2026 में ये कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जो कि है ग्रिड रिपोर्ट 2025 की, रिलीज की गई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा एंड नॉर्वेनियन रिफ्यूजी काउंसिल के द्वारा मई महीने में, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2024। तो 5.4 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रिपोर्ट होती हुई हमें दिखी विद इन इंडिया। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज में से, तो वर्ल्ड में तो सूडान ने टॉप किया यहाँ पे विद 11.6 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द वॉर जो वहाँ पर चल रही है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट, मेंशन द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट बिकेम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन FY25 विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ $9.2 बिलियन। तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है? वो है SBI। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन में विच B2B बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने सिक्योर किया अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का फंडिंग राउंड, अचीविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन एंड एंटरिंग इंडियन यूनिकॉर्न क्लब। तो वो है JSW1 प्लेटफॉर्म लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो पर्सन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स टू स्ट्रेंथन द टाइज अमंग द ब्रिक्स नेशन। तो हरवंश पी चावला जी, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन है। ये एक रिनोन्ड सीनियर कॉर्पोरेट लीगल एक्सपर्ट है। नेक्स्ट, संतोष कुमार सारंगी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सक्सीडिंग रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ऑफ लंदन लंदन इंग्लैंड, जो सक्सीड करेंगे लॉर्ड किंग ऑफ लॉथबरी। तो वो है एडवर्ड थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट, every year when is the global road safety week organized by World Health Organization to raise awareness about the road safety and advocate for measures to reduce road traffic deaths and injuries। तो वो है 12 से 18 मई। नेक्स्ट, ऑन 13th of May इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन था बेस्ड ऑन द CPI फेल टू कितना गिर गया 3.16% पे इन अप्रैल। ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया जाता है। फिर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे, 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन इन FY24 अप्रॉक्सीमेटली टू कितना टन 855 मिलियन मेट्रिक टन। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया एक जॉइंट वेंचर जो कि इंडियन कंपनी एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि फॉक्सकॉन है उनके साथ है। ये सेटअप करेंगे पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग नियर जेवर एयरपोर्ट इन यूपी। तो इंडिया से वो कौन सी कंपनी है? वो है HCL ग्रुप एंड इन्होंने पार्टनर किया फॉक्सकॉन के साथ, राइट, ताकि पहला सेमीकंडक्टर चिप यूनिट सेटअप किया जा सके जेवर यूपी में। एंड ये छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विद 76,000 करोड़ रुपीस फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मई 2025 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री ड्यूरिंग द 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ द गवर्नर्स। तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड बाय 2026 एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन मे। ये जो मिशन है इट विल यूज द मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 इसका नाम है, तो आप इससे लगा सकते हैं 6000 मीटर की डेप्थ पे जाएगा, 3 साइंटिस्ट के साथ जाएगा एंड यहाँ पे वो वेरियस टेस्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट जो कि कैनरा बैंक के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, राइट।
to cater institutional clients including healthcare, education and religious organizations. तो वो है Canara TruEdge. Next, let's move to the homework section, students. First question is for Dettol, for their product Icy Cool, who became their brand ambassador recently? Second question, tell me who has been appointed as the part-time member of the 16th Finance Commission recently? Third question, who has been appointed as the MD and CEO of Axis Max Life Insurance? Fourth question, tell me what is M1 and M2 money supply? Right? Differentiate between them and explain them. Fifth question, who has been appointed as the Deputy Chief Executive Officer of SBI General Insurance? And one sixth more question, students, it is important. Tell me recently who has been appointed as Managing Director of City India Solutions? Right? Then let's move to seventh questions also. Then tell me recently a exercise was held between India and Mongolia. Name that exercise, which edition of that exercise was held, and which force took part here, and from Indian side which part or which troops of that force took part. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.